A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you your next poem. The name of the poem is The Voice of Rain. The Voice of the Rain. This particular poem is written by Walt Whitman. ये जो particular poem है, Walt Whitman ने लिखा है. So before we proceed, let me just tell you the central idea of this particular poem. So Walt Whitman actually he just speaks to the rain. इस particular poem के अंदर जो Walt Whitman है वो rain से बातचीत करता है. It means there is a conversation between rain and the poet in this particular poem. इस particular poem के अंदर Walt Whitman और rain के बीच में एक conversation होता है when the poet meets the rain and he asks some question and surprisingly rain answer all those questions. तो rain वैसे generally अगर मैं बात करता हूँ rain answer नहीं कर सकता है. It is complete an imagination. ये एक imagination है, right? So in this particular poem, Walt Whitman is describing the birth journey of rain. Rain का जो एक journey होता है उसका birth का किस तरीके से वो पैदा होती है and comes down on the earth. So the journey of rain has been described in this particular poem beautifully. बहुत ही सुंदर तरीके से वॉल्ट विटमैन ने रेन का जो एक जर्नी होता है उसका एक जो लाइफ साइकिल होता है उसको डिस्क्राइब किया है. So now let us start this particular poem without any further delay. तो सबसे पहला स्टेंजा हम देखते हैं. And who are thou? And who are thou का मीनिंग होता है who are you? Who are you? So when Walt Whitman meets the rain and he asks, "Who are you?" तो जब Walt Whitman किससे मिलता है, रेन से मिलता है, तो उसे क्वेश्चन पुट करता है, "And who are thou?" It means who are you? कि आप कौन हो? And said I कौन बोलता है? पोइट बोलता है कि said I means Walt Whitman spoke to the rain, "Who are you?" तो किससे पूछता है? वो रेन से पूछता है कि आप कौन हो, right? And to the soft falling shower, to the soft falling shower. Soft का मतलब gentle हो गया. Falling shower, it means falling का मतलब नीचे की तरफ गिरना and shower stands for rain. तो यहाँ पे shower का मतलब rain हो गया. So the poet asked the rain, gentle rain, "Who are you?" The poet rain से पूछता है कि आप कौन हो? Which strains to tell, and surprisingly, when poet asks the rain, "Who are you?" the rain also responds him. तो rain भी क्या करती है? rain उसको surprisingly rain भी उसको क्या करती है? response देती है, उसको बताती है and give me an answer. और rain किसको आंसर करती है? poet को आंसर करती है as here translated. And what answer the rain gives to the poet as here translated. Now, whatever the answer is given by the rain has been described in these three particular stanzas. इस तीन particular stanzas के अंदर तो रेन ने बताया है, रेन ने आंसर किया पोइट को, और वो आंसर क्या किया? रेन स्पीक्स अबाउट इट्स जर्नी, इट्स लाइफ साइकिल. तो रेन अपना लाइफ साइकिल के बारे में बता रही है. हाउ डज इट डेवलप एंड कम्स डाउन ऑन द अर्थ, किस तरीके से वो डेवलप होती है, उसका ओरिजिन कहां से होता है, एंड इट कम्स ऑन द रेन एंड इट कम्स ऑन द अर्थ, किस तरीके से वो अर्थ के ऊपर आती है. So now let us start. तो यहाँ पर अभी यहाँ से लेके I से लेके लास्ट तक की अगर मैं बात करता हूँ, the complete poem has been described by the rain itself. अब rain इसको explain कर रही है. I am the poem of art. The rain says, I am the poem of the earth. यानी मैं धरती की कविता हूँ. Said the voice of the rain. Said the voice of the rain. Who speaks? The rain itself speaks. I am the poem of the earth. यानी मैं धरती की कविता हूँ. अब धरती की कविता हूँ, it means, let me just make it clear to you. Like say, whenever a poet compose a poem, so he has to think from his soul, right? तो कहीं ना कहीं उसको अपने soul या अपने heart से सोचना होता है. And those ideas are developed in his soul or heart. जब एक पोइट किसी भी पोम को बनाता, कंपोज करता, तो आइडियाज कहां से डेवलप होते हैं? वो आइडियाज डेवलप होते हैं उसके सोल से, उसके हार्ट से. सो आई एम द पोम ऑफ आर्ट, यानी कि मैं क्या हूं? एक धरती की कविता हूं. सेड द वॉइस ऑफ रेन,
इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मतलब जो कभी खत्म ना हो, इटर्नल मतलब एवरलास्टिंग। आई राइज, मैं उठती हूँ, डेवलप ओरिजिन, राइज का मतलब ऐसे ऊपर उठना होता है, यहाँ पे डेवलप कह सकते हो। आई डेवलप इनपैल्पेबल, इनपैल्पेबल का मीनिंग होता है विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। ऑफ द लैंड, धरती से यानी ऑफ द लैंड, एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी मींस which does not have a bottom, यानी लिमिटलेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर पोइट बोलना चाहता है, रेन बोलती है कि आई डेवलप फ्रॉम द लैंड और बॉटमलेस सी, इट मींस पोइट द रेन सेज माय ओरिजिन पॉइंट इज, और आई टेक बर्थ फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस सी, लाइक लाइक अ पोम डेवलप्स फ्रॉम द सोल ऑफ द पोइट। जिस तरीके से एक जो पोम होती है वो एक पोइट के हार्ट से डेवलप होती है, उसकी सोल से डेवलप होती है, उसकी थॉट से डेवलप होती है, इन द सिमिलर मैनर आई टेक प्लेस और सिंपली माय बर्थ इज फ्रॉम द लैंड और बॉटमलेस सी, मेरा जो जन्म होता है वो कहां से होता है, लैंड से और बॉटमलेस सी से होता है। So this is how the first stanza has been described. तो जिस तरीके से एक पोम जो होती है वो पोइट के हार्ट से डेवलप होती है, उसकी थॉट से डेवलप होती है, in the similar manner rain is also taken birth, rain is also developed from the land or bottomless sea, वहां से वो पैदा होती है। So rain is describing its life cycle, rain अपना life cycle को describe कर रही है इस particular poem के अंदर। Now let us discuss some poetic devices. तो सबसे पहले हम इस poetic devices को ध्यान से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमने यूज किया है personification, जहां पर आप ध्यान से देख पा रहे हो I, तो I किसके लिए यूज किया है, यहाँ पर हमने rain के लिए यूज किया है। So we have used over here personification. What do you mean by personification? Let me just make it clear. See, personification means when non-living or non-human act as a living being. जब आपका non-living और non-human एक living being की तरह act करता है, so that figure of speech is known as personification, which can be known as मानवीकरण करना. So rain cannot speak, right? Rain is non-living. Rain cannot speak. So, but in this particular poem, rain has been personified. रेन को पर्सोनिफाइड किया गया है, तो इसलिए हमने आई, तो मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रेन को जिसने, सॉरी यहाँ पर आई तो पोइट के लिए यूज किया गया है, बट यहाँ पर देखो which trains to tell give me an answer, I am the poem, I am the poem, ये जो आई यूज किया गया है, ये आई यूज किया गया है रेन के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है पर्सोनिफिकेशन, राइट। नाउ सेकंड पोएटिक डिवाइस इज, देखो यहाँ पर बोला है I am the poem of earth. I am the poem of earth. Now, which poetic device is this? This is called as metaphor. Metaphor. Now, what do you mean by metaphor? Which can be called as implied simile. इसको हम implied simile भी बोल सकते हैं. What do you mean by implied simile? When a direct imposition is given to something or someone. जब आप किसी को डायरेक्ट एक पोजीशन दे देते हो, एक टाइटल दे देते हो, तो उसको हम बोलते हैं मेटाफर। तो यहाँ पर देखो आई एम द पोम ऑफ आर्ट, तो जो रेन है उसने अपने आप को क्या बोल दिया, पोम ऑफ आर्ट, धरती की कविता, तो उसने अपने आप को पोम ऑफ आर्ट बोला है, तो वो टाइटल ही दे दिया उसने खुद को, आई एम द पोम ऑफ आर्ट, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड ओवर हियर मेटाफर। हमने कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज कर लिया, यहाँ पर हमने मेटाफर यूज कर लिया, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, उसके बाद देखते हैं हम कुछ और पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें बॉटमलेस सी, तो इसको बोलेंगे हम हाइपरबोल। सो व्हेन एन एक्सैगरेटेड स्टेटमेंट इज स्पोकन, जब आप एक एक्सैगरेटेड स्टेटमेंट को बोलते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपरबोलिक। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हमने यूज किया, बॉटमलेस सी मतलब हमने इस स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला है, सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड ओवर हियर hyperbole, right? Now at the same time, if you just look at over here, an answer, देखो जब आपका वोवल साउंड प्रोमिनेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं असोनेंस। तो यहाँ पर an answer अ साउंड प्रोमिनेंट है, तो हम इसको हम बोल सकते हैं असोनेंस, हम इसको असोनेंस बोल सकते हैं, right? These are the poetic devices of stanza number 1. Now let us move on stanza number 2. तो यहाँ से स्टार्ट था, eternal I rise impalpable of the land and the bottomless sea, upward to heaven.
heaven stands for, मतलब यहाँ पर heaven का मतलब है sky, and vaguely का मतलब है unclear formed. Now, in this particular stanza, we are going to understand the life cycle of the rain. So, how does rain develop? Rain develops from the land or from the bottomless sea, and after that, it takes the form of, and after that, what it converts into water vapor. इसके बाद जो रेन होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एंड देन it goes straight to the heaven. It means after that it goes straight to the sky. वो आसमान की तरफ चली जाती है, and vaguely unclear formed and takes the form of cloud. Unclear vaguely formed. Vaguely formed का मतलब यहाँ पे clouds बोल सकते हैं हम, and after that it takes the form of clouds. तो जनरली यही लाइफ साइकिल होता है किसका? रेन का. सो it develops from the land or bottomless sea. After that it converts into water vapor, and then it goes straight to the heaven and takes the form of cloud. और किसकी फॉर्म में आ जाती है? क्लाउड की फॉर्म में आ जाती है. And all together changed and yet the same. And now that you can say that rain changed into cloud, but the essence of the rain remains same. मतलब आप उसका जो शेप है या जिसका फॉर्म है वो चेंज हो जाता है. वाटर पहले क्या था? पानी था, वाटर था. अब उसमें किसमें चेंज हो गया? वो वाटर वेपर में चेंज हो गया, क्लाउड की फॉर्म में चेंज हो गया. नाउ यानी उसका जो फॉर्म है दैट हैज बीन चेंज्ड, बट द एसेंस रिमेन्स द सेम. मतलब लेकिन उसका एक वाटर वाला जो एक एसेंस होता है वो तो सेम ही रहता है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो वाटर वेपर हो, चाहे वो क्लाउड हो. सो दैट रिमेन्स सेम. यानी वो उसका जो एक जो एसेंस होता है वो बिल्कुल सेम रहता है. नाउ ओवर हियर द रेन हैज बीन चेंज्ड इनटू क्लाउड. अब यहाँ पर रेन किसमें चेंज हो गई? क्लाउड के अंदर चेंज हो गई है. क्लियर? आई डिसेंड का मतलब डिक्लाइन करना या कम डाउन, नीचे की तरफ आना, कम डाउन. आई कम डाउन टू ले का मतलब बाथ या वॉश करना, क्लीन करना. द ड्रॉट्स का मतलब सूखा हो गया. एटमॉइस का मतलब हो गया स्मॉल पार्टिकल्स. डस्ट लेयर्स, pollution of the globe of the world. Now, as we know that actually, our environment is quite polluted, and whenever it rains, whenever rain comes down on the earth, it cleans the droughts, it satisfies the droughts. अगर सूखा भी पड़ा हुआ है तो उस droughts को खत्म कर देती है, and it cleans the small particles. जो एटॉम्स होते हैं, उस स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, उसको भी क्लीन कर देती है. And dust layer, as we see, actually there's a lot of dust in the sky, and it cleans that dust also. So after rain, we always witness that there's clean and fresh environment on the earth. तो हम जनरली जब कभी भी रेन आती है तो हमें कैसा फील होता है? बहुत ही क्लीन और एक फ्रेश एनवायरनमेंट हमें फील होता है. कहां पर? अर्थ के ऊपर. So it means rain says that actually whenever I come down, I always clean the environment. I make it pollution free. तो उसको मैं क्या करता हूँ? pollution free बना देती हूँ. And all that in them without me mere seeds only, latent, unborn. Now rain says that all that in them without me mere seeds only. See, now a seed converts into a plant or tree. If it does not get enough rain or water, that seed will remain latent. Latent का मतलब hidden. Latent का मतलब है hidden. Latent का मतलब hidden. 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 Unborn. It will never be germinated. मतलब अगर किसी भी सीड को अगर प्रॉपर रेन नहीं मिलता है, वाटर नहीं मिलता है, so it will never change into, or it will never grow into a tree or plant. It will remain hidden and unborn. It will never germinate. वो कभी भी germinate नहीं होगा, वो कभी भी grow नहीं करेगा. So it means the plants, trees, they all depend on rain. So in short, if I say their survival is meaningless without rain, उनका जो survival है वो meaningless हो जाता है without rain. So this is your second stanza. बहुत beautifully इसको explain किया गया है, right?
Now let us explain the poetic devices. देखो poetic devices की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने देखो I descend, तो यहाँ पर भी हमने I किसके लिए यूज किया है? हमने I यहाँ पर rain के लिए यूज किया है, तो यहाँ पर भी हमने उसको personification यूज कर लिया, personification, right? हमने personification यूज कर लिया. Then me mayor. So my dear student, when we have a consonant sound prominent in a consecutive consonant sound is prominent in a given statement, that time we use alliteration. तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे मी जो मेयर दिया गया है, मी मेयर, तो ये जो है ये आपका alliteration हो गया, alliteration, alliteration, which is known as अनुप्रास अलंकार. So we have used alliteration over here. तो इस particular sentence, इस particular stanza के अंदर हमने क्या यूज कर लिया? Alliteration हमने यूज कर लिया है. I hope it is clear to you, right? So this is our second stanza. Now let's move on to the third stanza, stanza number 3. If we just look at stanza number 3, and forever, by day and night, I give back life to my own origin. Now in this particular stanza, Rain is saying, and forever, it means always, day and night, I give back to my own origin. अब origin क्या था इसका? Origin तो इसका land था, यानी earth था. And without rain, the people who are living on earth, the creature who are living on earth, actually their life is impossible. It means our life, our creature, environment, everything is completely dependent on rain. तो यहाँ पे बोला है, and I always, day and night, give back life to my own origin. So rain develops. What is the origin of rain? It's land. यानी जमीन से हार्ट से पैदा होती है. But at the same time, rain says that actually I always give life to my origin. It means I always provide सर्वाइवल टू द अर्थ, यानी मैं सर्वाइवल उनको देती हूँ. जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इन्वायरमेंट है, ट्रीज, प्लांट्स, जितने भी क्रिएचर्स, एनिमल्स, एवरीथिंग, व्हाटएवर इज एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, आई प्रोवाइड लाइफ टू देम. बिकॉज विदाउट रेन आवर लाइफ, क्रिएचर, प्लांट एंड एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे बोला है कि रेन क्या करती है? रेन हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर जितने क्रिएचर्स है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स एंड एवरीथिंग, आवर सर्वाइवल इज डिपेंड ऑन रेन. तो रेन हमें क्या देती है? जिंदगी देती है. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट. प्योर मींस क्लीन कह सकते हैं, राइट? एंड ब्यूटीफाई, टू अडॉर्न, सुंदर बनाने देना, टू डेकोरेट. एंड सी, व्हेनेवर इट रेन्स, इट मेक्स द एनवायरनमेंट प्योर, क्लीन. तो इससे क्या होता है? हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो क्लीन हो जाता है. एट द सेम टाइम इट डेकोरेट्स. व्हेन यू लुक एट द एनवायरनमेंट आफ्टर रेन, इट लुक्स फ्रेश. द लीव्स ऑफ द ट्रीज लुक फ्रेश, एवरीथिंग लुक्स फ्रेश. तो पूरी की पूरी जो धरती होती है हमें फ्रेश दिखाई पड़ती है, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल, और बहुत सुंदर लगती है. सो रेन सेज दैट एक्चुअली आई क्लींस द एनवायरनमेंट, एट द सेम टाइम आई decorates the earth. It means I beautify the earth. मैं जो धरती होती है उसको और भी ज्यादा सुंदर बना देती हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है लास्ट वाली. For the song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering. Wandering का मतलब होता है roaming, इधर उधर घूमना. Like as I gave an example in the beginning of this particular poem, like a poem is developed, okay, in the soul or in the deep thought of a poet. Generally जो एक poem होती है वो कहाँ पे develop होती है? एक poet की जो deep thought होती है soul के अंदर, heart के अंदर, वहाँ पे develop होती है, right? For the song issuing from its birthplace. What is the birthplace of a song or poem? It is the soul or heart of the poet. तो कोई भी जब अगर बात करते, चाहे वो सॉन्ग हो चाहे पोम हो, उसका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है? उसका ओरिजिन होता है द सोल ऑफ द पोएट और हार्ट ऑफ द पोएट, राइट? In the similar manner, what is the origin birthplace of rain? It's earth, it's bottomless sea. In the similar manner, जिस तरीके से एक जो पोम होता है या जो एक सॉन्ग होता है वो पोइट के सोल में पैदा होता है, पोइट की थॉट से, उसके हार्ट में वो पैदा होता है, एंड
after fulfillment, and whenever the listeners listen to that song and they get satisfied. और जब कभी भी जो listeners होते हैं उस song को सुनते हैं या उस poem को सुनते हैं, they get satisfied, वो संतुष्ट हो जाते हैं, and wandering, और वो क्या करता है, वो song क्या करता है, wandering, roaming करते हुए, इधर उधर घूमते हुए, and it finally comes to the its मास्टर कौन है, यहाँ पे पोइट है, एंड फाइनली वो सॉन्ग क्या करता है, लिसनर्स को सेटिस्फाइड करके जो उसका मास्टर होता है, उसका ऑनर होता है, मींस जो पोइट ने उसको बनाया है, उस पोइट के पास फाइनली वो जो पोएम है या वो सॉन्ग उसके पास वापस आ जाता है. इन द सिमिलर मैनर, द व्हेन रेन डेवलप्स origins from its birthplace, it means land and bottomless sea, and it goes straight to the sky in the form of cloud. It remains in the form of clouds, and after that it comes down on the earth and cleans the environment. तो जिस तरीके से रेन क्या करती है, रेन कहां से डेवलप होती है, लैंड से, अर्थ से डेवलप होती है, बॉटमलेस सी से डेवलप होती है, and after that it converts into water vapor and it goes straight to the sky and it changes into clouds में change हो जाती है, and finally it comes down to beautify the earth और clean the earth को clean करने के लिए आ जाती है. So this is the life cycle. In the similar manner, एक जो song होता है वो क्या होता है, it is developed in the soul or in the heart of the poet, and it goes straight to the listeners listen to that song, and after wandering here and there, and that song finally reaches to its master, जो कि poet होता है उसके पास आ जाता है, जिस तरीके से rain अपने origin जो place होता है उसका वहां पर वापस आ जाती है. Read, recount and unrecount. Recount and unrecount का जो meaning होता है, whether cared for, चाहे उस पर ध्यान दिया जाए, not cared for, मतलब जिस तरीके से जो सॉन्ग था वो सॉन्ग लिसनर से होता हुआ उसके मालिक यानी उसका पोइट तक वापस आ जाता, चाहे उसकी तरफ कोई ध्यान दे या ना ध्यान दे, and it finally comes to the poet in the similar manner that rain comes to its origin place. What is that origin place of rain? It's land, it's earth. तो उसी तरीके से जो रेन होती है वो भी कहां पर आ जाती है, with duly now returns, और वो सॉन्ग क्या करता है, बड़े प्यार के साथ जहां से वो पैदा हुआ था वहीं पर वापस आ जाता है. In the similar manner, that rain which is developed on earth and it finally comes to the earth, okay, through that life cycle से होते हुए वो क्या करते हैं, and finally it comes on the earth, वो अर्थ पे वापस आ जाती है. So this is how Walt Whitman had described, okay, his conversation with the rain. उसका जो कॉन्वर्सेशन होता है रेन के साथ, उसने उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है. एंड रेन डिस्क्राइब इट्स लाइफ साइकिल. जो रेन होता है वो अपनी लाइफ साइकिल में एक्सप्लेन करता है किस तरीके से उसका डेवलप होता है, किस तरीके से नीचे आती है, कौन सा उसका ओरिजिन पॉइंट है. सो लाइकवाइज रेन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन दिस फॉर्म, राइट. आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय यू, राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द लास्ट 10 jars. तो सबसे पहले देखो ऑन ओरिजिन. W O साउंड प्रोमिनेंट है तो यहाँ पर हम इसको एलिट्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे O साउंड यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने एलिट्रेशन यूज कर दिया, राइट, एलिट्रेशन यूज कर दिया. एट द सेम टाइम देखो I give back, तो यहाँ पर फिर हमने I यूज कर लिया. सो दिस इज नथिंग बट पर्सोनिफिकेशन, तो यहाँ पर भी हमने पर्सोनिफिकेशन यूज कर दिया, राइट. At the same time, if we just talk about, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ उसकी rhyming scheme की, so we do not have a specific rhyming scheme. It's a free words. अभी फ्री वर्ड्स क्या होता है, जब पोइट कोई भी स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम को यूज नहीं करता है तो उसको हम फ्री वर्ड्स बोल देते हैं. सो वी डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, राइट. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज stay happy and blessed. Enjoy your day.